God, the great and mighty God, who formed all things by the power of His Spirit and has brought Jesus Christ, His only begotten Son, who freely died for we sinners, the just for the unjust, to reconcile us back into this marvelous fellowship that we have again with God. प्यारे खुदा, अजीम और कादर मुतलिक खुदा, जिसने अपनी रूह की कुदरत के जरिए सारी चीजें तख्लीक की हैं और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को लाया है, जो हम गुनाहगारों की आजादी के लिए मरा, रास्तबाज नारास्तों के लिए, ताकि हमारी दोबारा खुदा के साथ सुलह और रफाकत कराए। As we are taught in the blessed word that we had fellowship with Him before the foundation of the world, when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy. Way back before the foundation of the world. जैसे कि हम बाबरकत कलाम में देख चुके हैं, जैसा कि दुनिया के बनाए जाने से पेशतर हमारी उसके साथ रफाकत थी, दुनिया के बनाए जाने से पेशतर जब सुबह के सितारे मिलकर गाते और खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे, दुनिया की बुनियाद से पहले ही वापसी की राह। How do we know that that wasn't at the same time that the Lamb was slain? That when God in His great thinking seen us shouting and rejoicing in our salvation through Jesus. हम कैसे जानते हैं कि उस वक्त बिल्कुल यही वक्त ना था कि वो बरा ज़बा हुआ था, कि जब खुदा अपनी अजीम सोच में हमें नारे लगाते और खुशी करते हुए हमारी निजात को यीशु मसीह के जरिए देख चुका था। And tonight we're only got a foretaste of that great glory divine which shall be revealed at His second coming. और आज रात हम सिर्फ उसकी अजीम जलाली आसमानी खुशी से पेशगी लुत्फानंदोज होते हैं, जो वो अपनी आमदे सानी पर हम पर जाहिर करेगा। All sickness and sorrow will be done away with. Then we'll have a body like His own glorious body, for we shall see Him as He is. तमाम बीमारियां और दुख इसके साथ दूर हो चुके होंगे, फिर हमारा बदन उसके जलाली बदन की तरह होगा, हम उसे देखेंगे जैसा वो है। Here as we look at our hands are withering, our hairs turning gray and shoulders stooping, we're aware that we're mortals and headed towards the dust from which our heads are bowed now and where we come from. और जब हम यहाँ अपने जुरीदार हाथों को और सफेद होते हुए बालों को और झुके हुए कंधों को देखते हैं, हम जानते हैं कि हम फानी हैं और मट्टी की तरफ से हैं, जिसकी तरफ हमारे सर झुके हुए हैं और हम जहाँ से आए हैं। But Lord God, just as sure as you are God, you made a promise that we'd be raised up again in the last days, and we believe it. लेकिन खुदावंद खुदा, जैसा कि हकीकत है, तू ही खुदा है और तूने वादा किया कि हम आखिरी दिनों में फिर उठ खड़े होंगे और हम इस पर ईमान रखते हैं। Solemnly we stand with our faith tonight in Thy presence, coming with boldness because that Jesus bid us to do it. अकीदत के तौर पर हम अपने ईमान के साथ आज इसकी हजूरी में खड़े हुए हैं और बड़ी दलेरी के साथ आते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें ऐसा करने की दावत दी है। Not upon any good thing that we have done, for we've done nothing right. But we come humbly professing that we own this treasure because of His grace that's been allotted to us. ना ही किसी अच्छे काम पर जो हम कर चुके हैं, इसलिए कि हमने कुछ ठीक किया ही नहीं, लेकिन हम इकरार करते हैं और हम अपने उस खजाने से जो कि उसने अपने फजल की बदौलत हम पर कसरत से किया है, फरोतनी से आते हैं। Therefore we come asking that you will bless us tonight in the bringing forth of the word. For it is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. इसीलिए हम आते हुए मांगते हैं कि आज रात तू कलाम को सामने लाकर उसके वसीला से बरकत देगा, क्योंकि ये लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। And let the mouth of God be spoken tonight. Amen. Let the words come forth and may it go deep into the hearts of we the listeners and be filled with Thy Spirit in Thy presence, for we ask it in Jesus' name. Amen.
और आज रात भी खुदा के मुंह ही से बोला जाना है। कलाम को आगे आने दें और ये हमारे दिलों पर गहरे तौर पर उतर जाए, सुनने वाले बने और उसकी रूह में और उसकी हजूरी में भर जाएं। हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Today and yesterday, last night rather, and today we have been speaking on the subject, first to head up, why we are not a denomination. आज और कल गुजरी रात, बल्कि आज हम इस उन्वान पर बातचीत कर चुके हैं। पहले इस बात पर कर रहे थे कि हम एक तंजीम क्यों नहीं हैं। And we have made it rather strong why we're not a denomination. Why we do not believe in denominations. Because we find it in the Bible that denominations was never ordained of God. It was ordained of the devil and proved it by the Bible. बल्कि हमने इसे अच्छे तरीके से सीखा क्यों हम एक तंजीम नहीं हैं और क्यों हम तंजीमों पर ईमान नहीं रखते, क्योंकि हम बाइबल में पाते हैं कि तंजीमें खुदा की तरफ से कभी मुकर्रर ना थीं, ये शैतान की तरफ से मुकर्रर थीं और इसे बाइबल ने साबित किया है। And how the true denominations brings forth error. Now we're saying this to correct and to bring this tabernacle into a fellowship around the blessed Word of God. और कैसे तंजीमों के जरिए गुनाह आया, अब हम कह रहे हैं कि इसे दुरुस्त कर लें और इसको टैबरनेकल में खुदा के बाप बरकत कलाम की रफाकत के चौगिर्द लाएं। That our hopes is not built in what denomination says or what any man says. It's built upon what the Lord God has said. And that's the only way we can ever be corrected right. जैसा कि हमारी उम्मीदें इस बात पर तामीर नहीं कि तंजीम क्या कहती है या कोई इंसान क्या कहता है, बल्कि ये इस बात पर तामीर है कि खुदावंद खुदा ने क्या कहा, और सिर्फ यही रास्ता है जिससे हमें बिल्कुल दुरुस्त होना है। And this morning I had 5, I believe, different articles that's come out through denomination that's absolutely not spoke of in the Bible, that the Protestant churches are bowing down to. और इस सुबह मेरे पास 5 मुख्तलिफ मजमून थे, मेरा यकीन है, जो कि तंजीम के जरिए आए, जो कि बिल्कुल बाइबल में नहीं बोले गए, जो कि प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने मजहबी तालीम देने के लिए डाले हैं, और इसके पीछे हम झुके जा रहे हैं। And teaching for doctrine the same thing that the old mother prostitute Catholic Church preaches, and come out into the Protestant Church and we bow to the same thing which is contrary to anywhere in God's Word. बिल्कुल वही चीज जो कि उस पुरानी माँ कस्बी कैथोलिक कलीसिया ने बयान की और प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं उसके पीछे हो ली, और हम ऐसी ही चीज के सामने झुक जाते हैं जो खुदा के कलाम में कहीं भी तजाद डालती है। The first denominational church, we looked it up this afternoon in the Nicene Fathers' history of the Nicene Church. At the death of the apostles, there what come the Nicene Fathers, and they went on for several years. पहली तंजीमी कलीसिया जो कि नासिया की कलीसिया है, हम इसे इस दोपहर नासियों के फादर की तवारीख में देख चुके हैं, जो रसूलों की मौत के बाद आए। जो नासियन फादर वहां आए, वो बहुत सालों के लिए उन पर मुकर्रर रहे। 325 years finally came to Nicaea, France, where they had the great Nicene Council. आखिरकार 325 ईस्वी को फ्रांस नासिया आए, जहां उन्होंने अजीम नासियन कौंसिल बनाई। And in there they formed these dogmas that the Catholic Church has now, and also that's handed down to the Protestants. और वहां उन्होंने ये सारे अकीदे रस्में बनाई जो कि अब कैथोलिक कलीसिया में हैं, और इसी तरह वो प्रोटेस्टेंट कलीसिया में भी मुंतकिल हो गई। As I said in the teaching this morning, each one of those church ages on up to that Thessalonica church age, the 1500 years of dark ages, there was not one time but what he said, you still have my name. और जैसा मैंने आज सुबह सिखाते हुए कहा, हर एक उस कलीसिया जमाने की जो उसके ऊपर आया, जैसा कि तसालिकियों की कलीसिया का जमाना 1500 साल तारीकी के अदवार में, यहाँ खुदावन ने एक मर्तबा भी नहीं कहा कि तू मेरे नाम पर कायम है। And on this other side, they wasn't in Christ anymore. They come out in a denominational name: Catholic, Luther, Wesley,
Baptist, Presbyterian, Pentecostal, on down. और इस दूसरी तरफ अब वो मसीह में नहीं थे, वो एक तंजीम के नाम से बाहर आए, कैथलिक, लूथर, वेस्ली, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, नीचे तक. But just before the closing of the age, he said, I set before you an open door. See? लेकिन सिर्फ जमाने के इख्तिताम से पहले उसने कहा, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है. समझे? And that's the age that we believe we're in right now. The open door age between the last going out of the Laodicean church. और यही जमाना है, हम ईमान रखते हैं कि अब ठीक इसी में हैं, खुले हुए दरवाजे के जमाना में, जो कि लौदीकिया की कलीसिया के जमाने के दरमियान आखिरी बार गुजर रहा है. And it's exactly 325 years to the Laodicean Council. और ये बिल्कुल ठीक 325 ईस्वी से लौदीकिया की काउंसिल तक है. And in there they adopted these forms such as sprinkling, pouring, and false baptisms, false Holy Spirit, all these other things. They adopted it. जहां उन्होंने इन इकसाम को अपनाया, जैसे कि छिड़काव करना, पानी डेलना और झूठे बपतिस्मे, झूठा रुलकुस और ऐसी तमाम दूसरी चीजें, उन्होंने इसे अपनाया. And then when Luther, being a priest and come out of the Catholic Church, brought these things with it. और फिर जब लूथर एक राहब होने के नाते कैथोलिक कलीसिया से बाहर आया, तो अपने साथ इन चीजों को लाया. And out of there comes Zwingli, out of Zwingli come Calvin, out of Calvin come Wesley, all on down. And they just keep bringing those dogmas down. और जोंगली बाहर आया, जोंगली के बाद कैल्विन आया, कैल्विन के बाद वेस्ली बाहर आया, हो नीचे तक आते रहे और वो इन तमाम अकीदों को लाए. And how can God lead His church when they're following roads that He never even brought out for them to be led on? और खुदा कैसे अपनी कलीसिया की रहनुमाई कर सकता था, जबकि वो उस रास्ते की पैरवी कर रहे हैं जो कि वो कभी भी नहीं लाया कि उन्हें उस पर चलना है. And remember in Revelation 17 we found the woman. Now these words are plain, they're written in the Bible, so I guess I can say them. और याद रखें, मुकाशवा 17 में हम एक औरत को पाते हैं. अब ये अल्फाज सादा हैं, वो बाइबल में लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया, मैं इन्हें कह सकता हूँ. It said this woman was a whore. That means that she was an ill-famed woman. That she's supposed to be married to a husband and committed fornications with the world. उसने कहा, ये औरत एक कसबी थी. इसका मतलब है कि वो एक बदनाम औरत थी, जैसा कि उसे एक शोर वाली होना था और उसने दुनिया के साथ जना का नाता जोड़ा. And she was a mother of harlots, therefore she had daughters. और वो एक थी, वो कसबियों की माँ थी, इसलिए कि उसकी बेटियां थी. And we have geographically drawn that. Being there myself, seeing it in the Scripture, seeing their doctrines and everything, I believe the Lord has perfectly laid it on the line that there can't be nothing else but the Catholic Church. It's the only way it can be. और हम जुग्राफियाई तौर पर इस पर तवज्जो दे चुके हैं. इस नाते मैं यहाँ खुद इस कलाम मुकद्दस में देखता हूँ, इसकी तालीमात और सब कुछ देख रहा हूँ. मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावन ने मुकम्मल तौर पर इसे इसकी कतार में रखा है, जैसा कि ये कैथोलिक कलीसिया के अलावा कोई और हो ही नहीं सकती. सिर्फ इस तरीके से यही हो सकती है. And what did she give birth to? The Protestant churches. Exactly she did. और क्या हुआ? उसने किसको जन्म दिया? ठीक वक्त पर उसने प्रोटेस्टेंट कलीसिया को जन्म दिया. And she had in her hand a cup of the wine of her fornications. And she was given it to the kings of the earth, and she was a ruler over all the earth, spiritually speaking. And that's exactly right. और इसके हाथ में इसकी जनाकारी से भरा हुआ एक मै का प्याला था और वो उसे जमीन के बादशाहों को दे रही थी और वो रूहानी बातचीत करती और सारी जमीन पर हुक्मरानी करती थी. और ये बिल्कुल ठीक है. There's not another. Look, we could go back to Daniel and get the image. Look at the image. The head of gold, the Babylonian kingdom, brass or silver, Medo-Persia. इसके अलावा दूसरी नहीं. देखें, हम दानियल में वापस जाते हैं और एक मूरत को हासिल करते हैं. मूरत की तरफ देखें. सोने का सर, बाबल की बादशाहत, पीतल, बल्कि चांदी, मादी फारसी हुकूमत. Brass, Alexander the Great and so forth, the Grecian kingdom. Then the Roman empires, Eastern and Western Rome, the 2 feet. पीतल, सिकंदर आजम और इसके आगे यूनानी बादशाहत, फिर रोमन हुक्मरानी, मशरकी और मगरबी रोम, जो के 2 पांव हैं. And notice in these 10 kingdoms, which exactly comes to those 10 horns that we're speaking of this morning,
in each one of those 10 kingdoms that was to rise, there was iron and clay mixed together. और इन 10 बादशाहियों पर तवज्जो कीजिए जो कि बिल्कुल इन 10 सिंगों के साथ आईं, जिस पर हम सुबह बातचीत कर चुके हैं। इन 10 बादशाहियों में हर एक उठ खड़ी हुई थी। वहां लोहा और मट्टी को आपस में मिला दिया था। And that iron come from the lakes, which was Rome, and there's a streak of Romanism mixed in every nation there is under heaven through the Catholic Church. It's exactly right. And they would not mix anywhere. और वो लोहा टांगों की तरफ से आया जो कि रोम था। आसमान के तले जितनी कौमें थीं वो कैथोलिक कलीसिया के जरिए रोमन इज्म में मखलूत हो चुकी थी। ये बिल्कुल ठीक है, वो किसी भी तरह इसे अब मखलूत ना कर पाएंगे। And they'd intermarry among one another. The Bible said they wouldn't. Look at them today. Your boy goes with a Catholic girl. When they go to get married, they have to promise to raise the children Catholic. See? Vice versa. See, it's to break the power of the other. और उन्होंने एक दूसरे के दरमियान मखलूत शादियां कर ली थी। बाइबल ने कहा वो करेंगे, और आज उनमें देखें, आपका लड़का एक कैथोलिक लड़की के साथ जाता है। जब वो शादी कर लेते हैं तो वो वादा करते हैं कि उनके आने वाले बच्चे कैथोलिक होंगे। समझे? इसके बरक्स कुछ नहीं, लड़की को भी इसी तरह करना पड़ता है। समझे? बस ये दूसरों की ताकत को तोड़ना है। But what is it? The Bible claims the whole thing's a prostitute. Now what are you going to do? That's right. लेकिन ये क्या है? बाइबल दावा करती है कि तमाम चीजें एक कस्बी की मानिद हैं। अब आप क्या करने जा रहे हो? जैसा कि ये ठीक है। And how the sins of the people will be visited. We went back in Deuteronomy and showed that an illegitimate child, bastard child, could not even enter the congregation of the Lord for 14 generations. और लोगों के गुनाहों का क्या इंजाम होगा? हम वापस सचिशना में जाते हैं और एक जना से पैदाशुदा आरामी बच्चे को देखते हैं, यहाँ तक कि 14वीं पुश्त तक खुदावंत की जमात में दाखिल नहीं हो सकता था। That was under the law. And Christ come to magnify the law. How much more is it now? वो शरीयत के मुताबिक था और मसीह शरीयत को बुलंद करने आया। अब उसने इसे कितना ज्यादा बुलंद किया। And what's happening to these? What's the matter with these little flappers on the street today? These little cigarette-sucking women and short-wearing, bob-haired flappers and so forth. इन छोटे बच्चों के साथ आज जो गलियों में घूमते हैं, इसी तरह ये सिगरेट पीने वाली औरतें और छोटे कपड़े पहनने वाली, कटे बाल और फड़फड़ाने वाली, इनके साथ क्या होने जा रहा है? What's the matter with it? It's because her mammy acted like that. It's visit the iniquity from one generation to the other. That's what it is. इनके साथ क्या मसला है? सबब क्योंकि इनकी माँ भी ऐसा ही करती थी। ये गुनाह है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जा रहा है। यही है। And what have we got? We've got to a place that's a conglomeration of nothing but messy sin. और हमने क्या पाया? हम एक ऐसी जगह को जो कि सिर्फ एक ढेर नहीं बल्कि गुनाहों का अंबार है पा चुके हैं। That's the reason God's raised up Russia yonder with an atomic bomb to wipe her off like the Antediluvian flood was when He raised the clouds. Sure He has. And the Bible says so. यही सबब है कि खुदा ने वहाँ एक जोहरी बम के साथ रूस को उठा खड़ा किया कि उसे तबाह कर दे, जैसा कि ये तूफान नूह में हुआ था जब उसने बादलों को खड़ा किया। यकीनन वो करता है और इसलिए बाइबल कहती है Russia, the atheistic country as they are atheistic, has absolutely playing just exactly in the hands of Almighty God. रूस दैरिया मुल्क है जैसे कि वो दैरिये हैं, मगर इसका भी दारोमदार कादरे मुतलिक खुदा के हाथ में है। Just as King Nebuchadnezzar was to destroy Israel because they failed to walk with God, Russia's raising right up to avenge the saints of the Catholic Church of the blood that she shed of the saints. The Bible said so. Let's go take the whole thing. इसी तरह जैसे नबूकतनजर बादशाह ने इस्राएल को तबाह किया था क्योंकि वो खुदा के साथ चलने में नाकाम हो गए थे, रूस को इसलिए खड़ा किया कि वो मुकद्दसों का बदला कैथोलिक कलीसिया से ले, उस खून का जो उसने मुकद्दसों का बहाया था। इसी तरह बाइबल कहती है वो सारी चीजों का हिसाब लेने जा रहा है। So look here, if their mother was a coarse girl, and their grandmother, and her mother was a flapper, what's she today? A rock and roll striptease. What's her children going to be? इसलिए यहाँ देखें, अगर उसकी माँ एक गाने वाली थी और फिर उसकी दादी और इसकी परदादी एक फड़फड़ाने वाली औरत थी, और आज क्या है, एक नाचने और गाने वाली, तो इसके बच्चों को कैसा होना है? And you say, does God do that
lesser. God visits the iniquity of the children, the generation even of 14 generations. और आप कहते हैं तो खुदा क्या करता है? हाँ जनाब, खुदा औलाद के गुनाह को नस्ल दर नस्ल यहाँ तक के 14वीं नस्ल तक पाता है. And if Christ come to magnify it, we'd say 100 generations or 500 generations. और अगर मसीह से बढ़ा दे, हम कहेंगे 100 नस्लों या 500 नस्लों तक. Why, he said them of old, you've heard him say them of old time, thou shalt not kill. I say, you who's ever angry with his brother, without a cause is killed already. क्यों यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था, तू खून ना करना. मैं कहता हूँ, तुम जो किसी सबब के बगैर अपने भाई के साथ हसद करते हो, वो उसे पहले ही कत्ल कर चुके. You've heard him say them of old times, thou shalt not commit adultery. But I say that who looks upon a woman to lust after her has committed adultery already. तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था तू जना ना करना, लेकिन मैं कहता हूँ जिसने बुरी निगाह से एक औरत को देखा वो पहले ही जना कर चुका. He made it once magnified, make it many times bigger. And if under the law there's 14 generations, how long will it take the same thing today? उसने कितनी दफा बढ़ाया? उसने कई मर्तबा से बढ़ाया. और अगर शरीयत के मुतहत ये 14वीं नस्ल थी तो आज ये चीजें कितनी नस्लों तक जाएंगी. And young man and middle-aged man and married men have no more respect for their marriage vows. Why, they just take women and live with them anywhere and just like common dogs. जवान मर्द, दरमियानी उम्र के मर्द और शादीशुदा मर्दों के लिए इनकी शादी के अहदो पैमा की कोई कदर नहीं रही, क्योंकि इसलिए कि वो औरतें लेते और उनके साथ कहीं भी आम कुत्तों की तरह रहते हैं. A dog's got better respects and better morals than some people have. Now, I know that's awful strong, but that's right. बनिस्बत कुछ लोगों के एक कुत्ता बेहतर इज्जत करता और बेहतर इखलाक रखता है, और मैं जानता हूँ ये बहुत भयानक बात है, लेकिन ये दुरुस्त बात है. Why? And the churches go right along and say nothing about it. Why? They're acting just like their mammy does. क्यों? कलीसियाएं ठीक इसी के साथ जा रही हैं और इसके बारे में कुछ नहीं कहती. क्यों? वो बिल्कुल वैसा ही अमल कर रही हैं जैसा उनकी माँ करती थी. The church is inherited. Cause the church and this Protestant church come out of the Catholic Church, the sins of the Catholic Church is visited upon the Protestants. Certainly it is. So pot can't call kettle dirty. It's exactly true. कलीसियाएं इसको विरासत में ले चुकी हैं, क्योंकि सारी कलीसियाएं और प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं कैथलिक कलीसिया से बाहर आई हैं. कैथलिक कलीसिया का गुनाह प्रोटेस्टेंट के ऊपर आता है. यकीनी तौर पर ये ऐसा ही है. तो प्याला केतली को नहीं पुकार सकता कि तू गंदी है. ये बिल्कुल सच है. Now we find out it in the scripture. We found out, and I never seen it note on the table here tonight. I said, show me one place where God ever ordained a denomination. Show me one place where God ever ordained a woman preacher. अब हम कलाम मुकद्दस में पाते हैं, हम देखते हैं, और मैंने आज रात कोई भी कागज मेज पर नहीं पाया. जैसे मैंने कहा था, मुझे एक भी जगह दिखाओ जहां खुदा ने एक तंजीम को मखसूस किया. मुझे एक भी जगह दिखाओ जहां खुदा ने एक औरत को मनाद मखसूस किया. Show me one place where God ever ordained sprinkling. Show me one place where God ever ordained pouring. Show me one place where God ever had anybody baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost. मुझे एक भी जगह दिखाओ जहां खुदा ने छिड़काव करना मखसूस किया. मुझे एक भी जगह दिखाओ जहां खुदा ने पानी अंडेलने को मखसूस किया. मुझे एक भी जगह दिखाओ जहां किसी को बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दिया गया हो. Find those things. And yet we constantly do them. It's just right down the church. इन चीजों को तलाश करें, और अभी तक हम मतवातर इन कामों को करते हैं. इस तरीके ने ठीक कलीसिया को ज़ेर किया. Now, I said, the reason we couldn't be Baptists, because we believe in being baptized in the name of the Lord Jesus Christ. There's no one ever in the Bible baptized any other way. अब मैंने कहा, इसी सबब से हम आपके तरीके से बैप्टिस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में लेना है. इसके अलावा बाइबल में बपतिस्मा देने का कोई तरीका नहीं है. You show me one place where one person is baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost, I'll raise my hands and say I'm a false prophet. आप मुझे एक भी जगह दिखाएं जहां किसी को बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दिया था. मैं अपने हाथों को उठा लूंगा और कहूंगा मैं एक झूठा नबी हूं. And if the Bible says you must be baptized in the name of Jesus Christ, that means you must do it that way.
Paul commanded them to be baptized over. No matter how they've been baptized, they had to come be baptized again. मगर बाइबल कहती है कि आपको जरूर ही यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए। तो इसका मतलब है आपको जरूर ही इस तरीके से करना चाहिए। पालूस हुक्म देता है इन्हें बपतिस्मा दिया जाए। कोई मसला नहीं कि उन्होंने कितने ही बपतिस्मे ले रखे थे, उनको दोबारा बपतिस्मा लेना था। They're baptized by the same man that baptized Jesus Christ, John the Baptist. He said that won't work no more. You got to come be baptized again. Hallelujah. And they had to do it before they received the Holy Ghost. It was God's program. उन्होंने बिल्कुल उसी इंसान से बपतिस्मा लिया था जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, यानी यूहन्ना अस्तबागी से। उसने कहा वो कोई और काम नहीं करेगा, आपको दोबारा बपतिस्मा लेने को आना है। और उन्होंने रूल को हासिल करने से पेशतर ऐसा ही किया था। ये खुदा का मंसूबा था। I might go just a little deeper in that tonight. Why? Jesus keeps His word. Do you believe that? I've printed all of you sure this morning, but I want to lay a little more on that. आज रात मैं इसे थोड़ा ज्यादा गहराई में जाना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि खुदावंद यीशु अपने कलाम में रहता है। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? अब इस शुभ यहाँ आप तमाम का होना खूबसूरत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी मजीद बात करूँ। Why would Paul command that after it had been done? Paul said, even if an angel from heaven come and preached anything else, let him be accursed. इसके हो जाने के बाद पालूस ने क्यों कहा? पालूस ने कहा यहाँ तक कि अगर आसमान का एक फरिश्ता भी आए और इसके अलावा कुछ बयान करे तो मलाउन हो। Now you say, we got new light on it. No, you haven't. That's what the devil come to Eve with, some new light. You don't need no new light. You need to walk in the light that God's already put here. That's all. अब आप कहते हैं हमने इसके ऊपर नई रोशनी हासिल कर ली है। नहीं, आपके पास रोशनी नहीं है। जैसे कि शैतान हवा के पास किस चीज के साथ आया? वो कुछ नई रोशनी के साथ आया। आपको नई रोशनी की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है उस रोशनी में चलने की जो खुदा ने पहले से यहाँ रखी है। ये ठीक है। Now, watch this just how simple. When they come down from Mount Transfiguration, Jesus said to His disciples, who does man say I the Son of Man am? अब देखें ये कैसा सादा है। जब वो सूरत तब्दीली के पहाड़ से नीचे आए तो यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? One said, you're Moses or Elijah, one of the prophets. He said, who do you say? He said, Peter said, thou art Christ, the Son of the living God. एक ने कहा मूसा, एलिया या नबियों में से एक हैं। उसने कहा तुम क्या कहते हो? पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। He said, blessed art thou, Simon, the son of Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you. See, it doesn't come through seminaries, it doesn't come through denominations. यीशु ने कहा मुबारक है तू शमौन बर यूना, गोश्त और खून ने ये तुझ पर जाहिर नहीं किया। ये सेमिनरी के जरिए नहीं आया, ये तंजीमों के जरिए नहीं आया। Flesh and blood has not revealed this to you. You never learned through any school of theology. But my Father, which is in heaven, has revealed this to you. गोश्त और खून ने ये तुझ पर जाहिर नहीं किया। तुमने इसे कभी भी किसी थियोलॉजी स्कूल के जरिए नहीं सीखा, लेकिन मेरा बाप जो आसमान पर है उसने तुझ पर जाहिर किया। And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. A spiritual revelation of who He is. और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम रवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे, यानी एक रूहानी मुकाशफा पर कि वो कौन है। Notice, and I say that thou art Peter, and I'll give unto thee the keys to the kingdom. And whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. Whatever you loose on earth, I'll loose it in heaven. गौर कीजिए, और मैं कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधता है मैं उसे आसमान पर बांधूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलता है मैं उसे आसमान पर खोलूंगा। Now he had to keep his word, or he wasn't God. अब इसे अपने कलाम पर कायम रहना है, वरना वो खुदा नहीं। Now, and when he did that, a few days later he was crucified, rose, ascended up into heaven, and Peter opened the gospel on the day of Pentecost. Did he do it? Certainly he did. अब जब उसने ऐसा किया तो कुछ दिनों के बाद वो मसलूब हुआ था और वो जी उठा और आसमान को चला गया, और पतरस ने पेंतीकोस के दिन खुशखबरी को खोल दिया। क्या उसने ऐसा किया? पतरस ने यकीनी तौर पर ऐसा किया। Now watch, they was all mocking at him because they were filled with the Spirit.
They were called heretics, holy rollers, or some kind of a name like that. And they even laughed and said, "These are full of new wine." अब देखें, जब उसने ऐसा किया, तमाम लोग उनको हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि वो सब रूल कुछ से भरे हुए थे। वो उन्हें बिदती, जनूनी या इस तरह का कोई और नाम पुकारते थे, और यहाँ तक कि वो हंसते और कहते, ये ताजा मै के नशे में हैं। And Peter, standing up in the midst of them, lifted up his voice and he said, "Man and brethren, hear my voice, hear my words, and hearken unto me." और पतरस उनके दरमियान खड़ा हुआ और अपनी आवाज को बुलंद किया और उसने कहा, भाइयों, मेरी आवाज सुनो, मेरी बातों पर कान लगाओ। These are not drunk like you suppose they are. This is just the third hour of the day, but this is that which is spoken of by the prophet Joel. ये मैं के नशे में नहीं है जैसे कि तुम समझते हो, ये तो दिन का पहर ही है, लेकिन ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत फरमाई गई थी। And it shall come to pass in the last days that I'll pour out of my spirit. And what he would do upon his sons and his daughters, his handmaids and so forth in the day. आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह अंडेलूंगा, उसी तरह उन दिनों में अपने बेटों और बेटियों पर और अपनी बंदियों पर भी अंडेलूंगा। And when they began to hear this, they were cut at their heart. For they heard a man that didn't know his ABCs, yet they had to take notice to him. No, he had something inside of him burning him up. The Holy Spirit. और जब उन्होंने ये सुनना शुरू किया तो उनके दिलों पर चोट लगी, क्योंकि एक ऐसे इंसान को जब उन्होंने सुना जो कि अपनी ABC को भी नहीं जानता था, उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान दिया, ये जानते हुए कि इसके अंदर कुछ है, रुलकुस जिसने उसे आग से लबरेज कर दिया था। Stopping would be like trying to put a fire out on a dry building on a windy day. You couldn't do it. He was filled with the Holy Spirit. इसे रोकिए, क्यों ये कोशिश कर रहा है कि तेज हवाओं में इस खुश्क इमारत में आग लगाए? आप इसे रोक नहीं सकते, वो रुलकुस के साथ भरा हुआ था। And what did he do now? They said, "Well, man and brother, what can we do to be saved?" Now watch out, Peter. You have the keys to the kingdom. See? और अब उसने क्या किया? उन्होंने कहा, ठीक है, अब भाइयों, हम क्या करें कि निजात पाएं? अब गौर कीजिए, पतरस, तेरे पास बादशाही की कुंजियां हैं, समझे? Now when Jesus rose on the third day, he did not have the keys to the kingdom of heaven. Did you know that? He said, "I got the keys to death and hell, but not to the kingdom because they had been given to Peter." अब जब यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो उसके पास आसमान की बादशाही की कुंजियां नहीं थी। क्या आप इस बात को जानते हैं? उसने कहा, मैंने मौत और आलम रवा की कुंजियां ले ली हैं, लेकिन बादशाही की नहीं, क्योंकि ये पतरस को दी जा चुकी थी। Now he said, "Well, Peter, whatever you loose on earth, I'll loose it in heaven. What you bind on earth, I'll bind it in heaven." अब यीशु ने पतरस को कहा था, जो कुछ तू जमीन पर खोलता है, मैं उसे आसमान पर खोलूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधता है, मैं उसे आसमान पर बांधूंगा। Now here he stands with the keys to open up this blessed thing to the world, and here he's got the keys in his hand, and they're asking, "What can we do to be saved?" अब यहाँ वो कुंजियों के साथ खड़ा है ताकि इस मुकद्दस चीज को दुनिया के लिए खोले, और यहाँ कुंजियां उसके हाथ में हैं, और वो लोग पूछ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं कि निजात पाएं? Now, no matter what the apostles said to do, God has to recognize it in heaven if he give him that authority. अब कोई मसला नहीं कि रसूल ने क्या कहा कि करो। अगर खुदा ने पतरस को ये इख्तियार दिया था, तो आसमान में उसकी शनाख्त कर चुका था। Now Peter said, "Repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." Amen. Is that right? अब पतरस ने कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, और तुम रूल कुछ इनाम में पाओगे। क्या ये दुरुस्त है? And that's the reason. The keys turned in heaven to any other name, any other way, any other form. It turned on earth and it turned in heaven, or Jesus didn't keep his word to Peter. और यही सबब है कि आसमान में कुंजियां किसी दूसरे नाम से, ना ही किसी दूसरे तरीके से घूमती हैं, ना ही किसी दूसरी किस्म से। यही जमीन पर घूमती हैं और यही आसमान पर घूमती हैं। या फिर यीशु ने अपना कलाम पतरस को दिया ही नहीं था। And every place in the Bible they was baptized. After that they were baptized in the name of Jesus Christ. और इसके बाद बाइबल में हर जगह उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। And those who were baptized before that
to come and be baptized over again in the name of Jesus Christ to get the Holy Ghost. That's correct. It still runs the same. और जिन्होंने उससे पहले बपतिस्मा लिया था वो दोबारा आते और उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाता ताकि रूल कुछ हासिल करें। यही दुरुस्त है, इसे इसी तरह रवा रहना है। So if we are teaching baptism in the name of Father, Son, and Holy Ghost, it's false prophecy. Now, I don't want to hurt you, but I got to pin this down so this church will know what. बस अगर हम बाप बेटे रूल कुछ के नाम में बपतिस्मे की तालीम देते हैं जो कि झूठी नबूवत है, अब मैं आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने इसे मजबूती से पकड़ा है। इसी तरह कलीसिया इसे जानेगी। We're not here as a bunch of illiterate crackpots. We know where we're standing in the Word of God. See? We know. हम यहाँ ऐसे नहीं जैसे जाहिल और टूटे हुए बर्तन। हम जानते हैं कि हम खुदा के कलाम में कहाँ खड़े हैं। समझे? ये हम जानते हैं। I challenge anybody to show me one place where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. Now you go listen to false prophecy or the truth. Search the scriptures. It's up to you. मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी मुझे एक ऐसी जगह दिखाए जहाँ किसी को बाप बेटे और रूल कुछ के नाम में बपतिस्मा दिया गया था। अब आप झूठी नबूवत सुन रहे हैं या सच्चाई को? कलाम मुकद्दस में इसकी तलाश करें, ये आप पर मुनस्सर है। Show me where one person in the Bible, where a church was ever ordained a denomination in the Bible. Show me the Bible where they ever ordained a woman preacher. मुझे एक भी शख्स बाइबल में कहीं दिखाएं जहां कलीसिया ने बाइबल में एक तंजीम को मुकर्रर किया था। मुझे बाइबल में दिखाएं कहां एक औरत को मनाद मुकर्रर किया गया था। Show me the Bible where all these things that we've been talking about ever was ordained in the Bible. They're not there. मुझे बाइबल में दिखाएं ये सारी चीजें कहां हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। बाइबल में कहां मुकर्रर थी, वो इस जगह नहीं है। Tell me one place you go to a denomination. Well, when the Methodists raised up, they preached sanctification. That's good. But when they did that, they made a denomination that settled it. मुझे एक भी जगह बताएं जहां एक तंजीम पाते हैं। ठीक है, जब मेथोडिस्ट उठ खड़े होते उन्होंने पाकीज़गी को बयान किया, ये अच्छा है, लेकिन जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने एक तंजीम बना ली और इसे कायम कर दिया। That's the reason the Bible said you got a name. You say, I'm a Christian. Well, what denomination do you belong to? यही सबब है कि बाइबल कहती है तुमने एक नाम पा लिया। आप कहते हैं मैं एक मसीही हूँ। ठीक है, तो फिर तंजीम के साथ आपका क्या ताल्लुक है? You say a Methodist? Well, you're a prostitute then. I'm a Baptist? Prostitute. Pentecostal? You're a prostitute. You belong to that church. आप क्यों कहते हैं मैं एक मेथोडिस्ट हूँ तो फिर आप एक कस्बी हो? मैं एक बैप्टिस्ट हूँ तो फिर आप एक कस्बी हो? मैं पेंतीकोस्टल हूँ तो फिर आप एक कस्बी हैं। आप उस कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं। You should belong to Christ. Got no business saying Methodist, Baptist. If you're a Christian, you're a Christian at heart. आपका ताल्लुक मसीह के साथ होना चाहिए, ना कि कारोबार करने वालों की तरह कहें मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ। अगर आप एक मसीह हैं तो आप दिल से एक मसीह हैं। Every one of those denominations can produce children. Children of God, that's right. But when you think you're going to heaven just because you're a Methodist or Baptist, you're wrong. And that's the reason we stayed out of that thing. इनमें से हर एक तंजीम खुदा के बच्चे पैदा कर सकती है, ये ठीक है, लेकिन जब आप ये सोचते हुए आसमान को जा रहे हैं क्योंकि हम मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट हैं तो आप गलती पर हैं, और यही सबब है कि हम इस चीज से बाहर ठहरे हुए हैं। Why can't the Baptist say, I asked a Methodist man here around the Fiesta just so long ago. He said the only thing we got against you hang around the Pentecostals. क्यों बैप्टिस्ट इस बात को नहीं समझते? मैंने यहाँ एक मेथोडिस्ट आदमी से पूछा जो काफी अरसा पहले एक मजमून लिख रहा था। उसने कहा एक ही चीज है जो हमें आपके खिलाफ करती है कि आप पेंतीकोस्टल ग्रुप के साथ लटके रहते हैं। I said, who's we? We Methodists. मैंने कहा हम कौन हैं? हम मेथोडिस्ट हैं। I said, well, I'll tell you what I'll do. I'll come to your city and you let the Methodist sponsor it. Oh, said, of course we couldn't do that. That's what I thought. मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करूंगा। जब मैं आपके शहर में आऊंगा तो आपकी मेथोडिस्ट कलीसिया मुझे स्पॉन्सर करेगी? हो, उसने कहा बेशक हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ये वैसा ही है जो मैंने सोचा। I stay with the Pentecostal because the Pentecostal believes it. Right. They rally around it. They're the ones drawing the benefits of it. मैं पेंतीकोस्टल के साथ रहता हूँ क्योंकि पेंतीकोस्टल इस पर ईमान रखते हैं। ये ठीक है, वो इसके चौगिर्द इकट्ठे होते हैं। ये वो लोग हैं जो इससे फायदा उठा रहे हैं।
How many read that article in Life magazine just recently about the Pentecostal church? It's one of the greatest phenomena in this age. कितने हैं जिन्होंने अभी हाल ही में लाइफ मैगजीन में पेंतीकॉस्टल कलीसिया के बारे में ये मरासला पढ़ा? इस दौर के बहुत बड़े कारनामों में से एक है। They got more converts in 1 year than all the rest of the churches put together. Why? Even in their eras, God's moving them on because they believe the truth and marching on with it. It's the truth. उन्होंने एक साल में बहुत सारों को बदल दिया और सारी कलीसियाओं को यकजा किया। क्यों? यहाँ तक कि उनमें खताएं हैं, लेकिन फिर भी खुदा उनके साथ काम कर रहा है क्योंकि वो सच्चाई पर ईमान रखते हैं और इसके साथ चल रहे हैं। ये सच्चाई है। But what are we doing now? See, that's the reason we're not denomination. लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? समझे? यही सबब है कि हम तंजीम नहीं हैं। And just as sure as Pentecostal denominates, and way back under when the Holy Ghost first poured out on the Pentecostal church 40 years ago, and they began to speak with tongues, one of the gifts. और बिल्कुल इस तरह पेंतीकॉस्टल ने अपने आप को मुनज़्ज़म कर लिया, और जब पीछे पहली बार रुलकुस पेंतीकॉस्टल कलीसिया पर अंडेला गया, 40 बरस गुजर गए और उन्होंने गैर जुबानों के साथ बोलना शुरू किया, जो कि नेमतों में से एक नेमत है। That's the smallest of the gifts. That's the least of the gifts, according to St. Paul. You're speaking with tongues. जो कि नेमतों में से छोटी सी है। मुकद्दस पौलुस रसूल के मुताबिक गैर जुबान में बोलना एक छोटी सी नेमत है, जो कि नेमतों में से एक है। And as soon as it fell, oh, they say we got it now, and they made a denomination, the General Council, which is now the Assemblies of God. और जैसे ही ये अंडेला गया हो, वो कहते हैं हमने इसे अभी पा लिया, और उन्होंने एक तंजीम बना ली, जनरल काउंसिल, जो कि अब असेंबली ऑफ गॉड है। Oh, nobody's got it unless you speak with tongues, and God just moved right on away from them and let them sit there. Certainly. Yes, sir. हो, वो कहते हैं जब तक आप गैर जुबानों में ना बोलें, कोई इसे हासिल नहीं कर सकता, और खुदा बिल्कुल उनसे दूर हो गया और उन्हें वहीं बैठे रहने दिया। यकीनी तौर पर हाँ जनाब। Along come the oneness and found out the baptism in Jesus' name. They said, oh, we got it. They're organized. What they do? God just moved right out and left them sit there. It's for whosoever will let him come. और साथ ही वदानियत आई और यीशु नाम में बपतिस्मे की बुनियाद रखी। वो कहते हैं हो, हमने इसे पा लिया, वो भी मुनज़्ज़म हो गए, वो और क्या करेंगे? और खुदा उनसे दूर हो गया और उन्हें वहीं बैठे रहने के लिए छोड़ दिया। इसलिए जिस किसी की मर्जी इसे आने दे। See, the oneness can't go to the assemblies can't go to the oneness. I've talked to some of the best men they got, Mr. Goss and Dr. Pope and many. समझे? वदानियत वाले असेंबलियों में नहीं जा सकते, ना ही असेंबली वाले वदानियत में आ सकते हैं। मैं काफी बेहतरीन लोगों में से कुछ के साथ बातचीत कर चुका हूँ, जिनमें मिस्टर गोस और डॉक्टर पोप और बहुत सारे हैं। The men who were great men, I sat down with them. I said, "How can you teach that initial evidence as a scholar?" जो बड़े आदमियों में से हैं, मैं इनके साथ बैठा हूँ। मैंने कहा, आपने एक आलम होते हुए कैसे इन वाकयात का आगाज किया? What said Brother Branham? 1, 2, or 3 of them was real honest. Said, we know that's wrong, but what can we do? If we say anything about it now, well, it'll interrupt the whole program, sure, and you won't be the bishop anymore, the general overseer. That's the idea. ठीक है, उसने कहा, भाई ब्रैनम, उनमें 1, 2 या 3 हकीकी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, हम जानते हम गलत हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर हम अब इसके बारे में कुछ भी कहेंगे तो इस पूरे प्रोग्राम में मुदाखलत होगी। यकीनन ऐसा होगा, और फिर आप मजीद बिशप या जनरल नाज़र नहीं होंगे। यही ख्याल है। Brother, I'd rather have me a little mission on the corner or preach under a pine tree and have the truth. Certainly, know that you're telling the truth. भाई, मैं तो चाहता हूँ कि किसी कोने में मेरे पास कम अज कम कोई मकसद हो, या एक सनोबर के दरख्त के नीचे मुनादी करूँ, और यकीनन जब कि ये जानते हैं कि आप सच्चाई को बयान कर रहे हैं। Man wants the truth, and you're obligated as a Christian to bear forth the record of truth. God's going to hold you responsible for it. और इंसान भी सच्चाई चाहता है, तो एक मसीह होते हुए आप पाबंद हैं कि सच्चाई के सबूत पेश करें। खुदा आपको इसका जिम्मेदार ठहराने जा रहा है। Then on these things, if you haven't been baptized in the name of Jesus Christ, and you haven't done these things, and you haven't received the Holy Ghost, तब इन बातों पर अगर आप यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं पा चुके और आपने ये काम नहीं किए, तो आपने रूल को हासिल नहीं किया है। you say, well, I spoke with tongues. That don't mean you got the Holy Ghost.
I've seen witches, wizards, demons, and everything else speak in tongues. Certainly, they got the Holy Ghost, and you know that. आप कहते हैं, ओ मैं गैर जुबानों में बोला, इसका ये मतलब नहीं कि आपने रुलकुश पा लिया। मैं जादूगरों, साराओं, बदरूहों और इसके अलावा सब कुछ को देख चुका हूँ जो बेगाना जुबानों में बोलते हैं। बेशक वो बोलते हैं, उन्होंने रुलकुश को हासिल नहीं किया और आप इस बात को जानते हैं। Drink blood out of a human skull and dance and call the devil and speak in tongues. Certainly, they got the Holy Ghost. वो एक इंसान की खोपड़ी से खून पीते और नाचते और शैतान को बुलाते और बेगाना जुबानों में बोलते हैं। बेशक उन्होंने रुलकुश नहीं पाया है। So cause you spoke with tongues, that don't mean you got it. The only way you know you got it, when your spirit bears record with His Spirit and the fruits of the Spirit follow you. बस इसलिए कि आप गैर जुबानों में बोल चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसे पा लिया। सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे आप जानते हैं कि आपने उसे पा लिया, जब आपकी रूह उसकी रूह के साथ सबूत पेश करती है और रूह के फल आपके पीछे होते हैं। Love, faith, joy, peace, long suffering, goodness, meekness, gentleness. That's when you know you got the Holy Ghost. It bears record of itself. यानी मोहब्बत, ईमान, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, परहेजगारी, हलीमी, तब आप जानते हैं कि आपने रुलकुश पा लिया है। तो ये खुद इसका सबूत पेश करता है। Now, when you're trying to rest upon because you belong to the Assemblies or to the Baptists or to the Presbyterian, you see what you're doing? You're taking on the name of a prostitute. That's exactly right. अब जब आप इन चीजों पर तकिया करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप असेंबली से या बैप्टिस्ट से या प्रेस्बिटेरियन से ताल्लुक रखते हैं, तो आप गौर करें आप क्या कर रहे हैं। आप एक कस्बी का नाम अपने ऊपर ले रहे हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। Get out of that thing. Come away from it. I don't mean out of your church or anything. You do what you want to about that. ऐसी चीज से बाहर निकल आएं, इससे दूर हो जाएं। मेरा ये मतलब नहीं है कि अपनी कलीसिया से बाहर आ जाएं या किसी और चीज से। आप जो इसके बारे में सोचते हैं कर लें। But come away from laying on, oh, I'm Presbyterian, we don't believe in the days of miracles. Why don't you believe it? The Bible teaches it. लेकिन इस पर तकिया करने से दूर हो जाएं। हो, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, हम मौजज़ात के दिनों पर ईमान नहीं रखते। आप क्यों इस पर ईमान नहीं रखते? बाइबल ये सिखाती है। Oh, I belong to Church of Christ. They say the days of miracles is past. They're false prophets. Amen. हो, मैं चर्च ऑफ क्राइस्ट से ताल्लुक रखता हूँ। वो कहते हैं मौजज़ात के दिन गुजर चुके, तो वो झूठे नबी हैं। I can show you where Jesus Christ give power to the church to heal the sick and raise the dead and cast out devils. I challenge any man to show me a scripture in the Bible where He took it away from the church. मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ यीशु मसीह ने कलीसिया को इख्तियार दिया है कि बीमारों को शिफा दें और मुर्दों को जिंदा करें, बदरूहों को निकालें। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी शख्स मुझे बाइबल में से भी एक भी हवाला दिखाए जहाँ उसने ये चीजें कलीसिया से निकाल दी हों। What took it away? Your own dogma. Right, not God's word. The Holy Spirit still getting the job done, going right on just the same. And He will forever. उसने क्या दूर किया? आपका अकीदा। ठीक है, ना के खुदा का कलाम। रुलकुश अभी तक इसी काम को जारी रखे है, बिल्कुल वैसे ही जारी रखे है और हमेशा जारी रखेगा। That's the reason we're not a denomination, having a form of godliness and denying the power thereof. From such turn away. We don't believe in that stuff. यही सबब है कि हम एक तंजीम नहीं हैं। वो दीनदारी की वजह तो रखते हैं मगर उसके असर को कबूल नहीं करते। ऐसों से किनारा करो। इसीलिए हम ऐसी फजूल चीजों पर ईमान नहीं रखते। Now, how did it ever start? We'll have to hurry and get to it just as quick as possible now. How it ever started. Now we've got plenty of scriptures wrote out here about the Holy Ghost. अब इसे इब्तदा में कैसे शुरू किया गया, हम जल्दी से इसे लेंगे और जितनी जल्दी मुमकिन हो इसे अब लें। ये इब्तदा में कैसे शुरू हुआ था। अब हमारे पास कलाम मुकद्दस के बहुत सारे हवाले हैं जो कि रूल कुछ के मुतालिक लिखे गए हैं। And another thing, we made a challenge last night on the perseverance of the saints. Not in the way the Baptists believe it. No, sir. I'm sure different with the Baptists and their idea of their theory of Calvinism. और दूसरी बात, हमने गुजरी रात एक चैलेंज किया था मुकद्दसों की साबित कदमी पर। इस तरीके से नहीं कि जिस तरह बैप्टिस्ट ये ईमान रखते हैं। नहीं जनाब, मैं यकीनन बैप्टिस्ट और उनकी राय के साथ उनके नजरिए पर जो कैल्विनिज्म के मुतालिक है फर्क रखता हूँ। I certainly disagree with the Presbyterians. I disagree with the Methodists upon their way of Armenian doctrine. Yes, sir. मैं यकीनी तौर पर प्रेस्बिटेरियन के साथ मुत्फिक नहीं हूँ। मैं मेथोडिस्ट के साथ
उनके आर्मीनियन की तालीम देने पर मुतफिक नहीं हूँ। हाँ जनाब, But they both got a truth, but you got to bring it back here where it is the truth. When you run out there, you run wild with it. Certainly. लेकिन इन दोनों ने कुछ सच्चाई को पा लिया, लेकिन आपने जो पाया है वो आपको वहां वापस लाता है जहां सच्चाई है। जब आप सच्चाई से बाहर भागते हैं तो आप जंगली जानवरों की तरह दौड़ते हैं। यकीनी तौर पर ऐसा ही है। Baptists come in, baptize a couple over here in immersing. The preacher baptized them, 9 out of 10 smoke cigarettes. Go back out and stand out there and play cards, bunco all night, run around crooked business deals and. एक बैप्टिस्ट जोड़ा कलीसिया में आता है और उनको पानी में डुबोया जाता है और खादम उन्हें बपतिस्मा देता है, जबकि 10 में से 9 सिगरेट पीते हैं, वापस बाहर जाते, वहीं बाहर खड़े होते और तमाम रात ताश खेलते, उनके चगिर्द दौड़ते और चोर बाजारी का कारोबार करते हैं। All women wearing shorts out here running around the streets and bobbing their hair and smoking and talking and little stitch and sew parties and telling dirty jokes. और तमाम खवातीन बाहर छोटे कपड़े पहनती और गलियों में दौड़ती और उनके कटे हुए बाल होते और वो सिगरेट पीती और बातें करती और छोटी बड़ी पार्टियां सजाती और गंदे मजाक बताती। You call that Christianity? And you think you got eternal security? You're going to hell like that. You wouldn't enjoy yourself in heaven in any manner. Certainly not. That's not eternal security. और क्या आप इसको मसीहत पुकारते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपने अब्दी सुकून हासिल कर लिया? इस तरह आप जहन्नम जा रहे हैं। आप किसी भी सूरत में अपने आप को आसमानी बादशाही में नहीं पाएंगे। यकीनी तौर पर नहीं, ये अब्दी सुकून नहीं है। But when a man is born again of the Holy Ghost, and you Pentecostal, cause you jumped up and down, spoke in tongues, and ran up down the aisle, that don't mean you got eternal security. You never get that in your head. No, sir. It certainly doesn't. लेकिन जब एक इंसान दोबारा रूल कुछ से पैदा होता है तो, और तुम पेंतीकास्टलो इस वजह से कि तुम ऊपर नीचे उछलते कूदते, गैर जुबान में बोलते, गिरजे के दरमियानी रास्ते में ऊपर नीचे दौड़ते, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अब्दी सुकून पा लिया। आप इसे कभी भी अपने दिमाग में ना बैठने दें। नहीं जनाब, ऐसा यकीनी तौर पर नहीं है। Because you know that your own life bears you out record that you're not right with God. That's right. You're not right. That's not eternal security yet. क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी अपनी जिंदगी ने ये बर्दाश्त ना किया और आप बाहर हो गए क्योंकि आप खुदा के साथ दुरुस्त नहीं हैं। ये दुरुस्त बात है कि आप दुरुस्त नहीं हैं। ये अभी तक अब्दी सुकून नहीं पाते। I want to ask you something. Is there an eternal security? The Bible says so. The Bible said that our names were put on the Lamb's Book of Life before the world ever began. लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या ये एक अब्दी सुकून है? इसलिए बाइबल कहती है, बाइबल ने फरमाया कि हमारे नाम बरा की किताबे हयात में दुनिया के बनाए जाने से पेशतर लिखे हुए थे। As I said this morning, I say it again. The man who wrote the song, there was a new name written down in glory tonight in his mind. His idea was all right, but he was wrong scripturally. जैसे मैंने इस सुबह कहा, मैं इसे दोबारा कहता हूँ, वो आदमी जिसने ये गीत लिखा, एक नया नाम आज की जलाली रात में लिखा गया था और ये मेरा है। इसकी राय बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन वो कलाम के एतबार से गलत था। Your name wasn't put on the night you got saved. Your name, according to the Bible, according to Revelations 13, 17, and so forth, was put on there before the world ever began. And Jesus Christ was slain before the foundation of the world. जब आपने नजात पाई तो आपका नाम इस रात में नहीं लिखा गया था। ये इस तरह है, आपके नाम बाइबल मुकाशवा 13 और 17 के मुताबिक दुनिया की इब्तदा से पेशतर वहां लिखे गए थे और यीशु मसीह दुनिया के बनाए जाने से पेशतर ज़बा हुआ था। How could God, who is infinite, how could an infinite God, knowing the end from the beginning, how could he ever permit sin to come on earth if it wasn't for a reason? खुदा ये कैसे कर सकता था? कौन लामहदूद है? कैसे एक लामहदूद खुदा शुरू ही से आखिरत के बारे में जानता था? अगर इसके लिए कोई वजह ना थी तो उसने कैसे इजाजत दी कि गुनाह जमीन पर आए? Just to back up now some things that we have said. What was first, the Savior or sinner? Savior, sure. इसी तरह अब वापस कुछ चीजों पर आते हैं जो कि हम कह चुके हैं। पहले कौन था, नजात देने वाला या एक गुनाहगार? वाकई ही नजात देने वाला। Which is more powerful, Savior or sinner?
If a Savior can take away the sin, He's more powerful. कौन सा ज्यादा ताकतवर है, एक निजात देने वाला या एक गुनाहगार? अगर एक निजात देने वाला गुनाह को दूर कर सकता है तो वो ज्यादा ताकतवर है। Well, why did He let sin happen in the first place? To show that He was a Savior. ठीक है, पहली बात, क्यों उसने गुनाह को होने दिया? ताकि जाहिर करे कि वो एक निजात देने वाला था। Which is the most powerful, a healer or a sickness? A healer, then why did He let sickness come? To show that He was a healer. I'm feeling religious right now. Yes, sir. Oh my, that's His attributes. कौन ज्यादा ताकतवर है, एक शिफा देने वाला या एक बीमारी? एक शिफा देने वाला। फिर क्यों उसने बीमारी को आने दिया? ताकि जाहिर करे कि वो एक शाफी है। अब मैं ठीक खुदा में महसूस कर रहा हूँ। हाँ जनाब, हो मेरे खुदाया, यही इसकी खसूसियात हैं। That's why He lets trouble come. That's why He lets sorrow come. To show that He's joy. Sure it is. इसीलिए उसने मुसीबत को आने दिया, इसलिए उसने दुख को आने दिया, ताकि जाहिर करे कि वो वाकई ही शादमानी है। वाकई ये है। That's why we got a night, to prove there is a day. That's why we got temper, to show there is peace. Sure, it's pro and con. Oh, He's wonderful. इसलिए हमने एक रात पाली ताकि साबित करे कि एक दिन है। इसलिए हमने गुस्सा पाया ताकि जाहिर करे कि सुलह है। वाकई ये एक दूसरे के बरक्स हैं। हो, ये हैरत अंगेज है। Now, how did it start? We'll get straight to it just as quick as we can, so we won't keep you all night. अब कैसे इसे शुरू किया? हम इसे सीधा समझेंगे, बिल्कुल जल्दी जैसे हम कर सकते हैं, इसलिए हम आपको पूरी रात नहीं रखेंगे। Now, there's got to be a beginning of all things. And I want to ask you something. Now, this may you just tuck this over in your vest pocket. You don't have to put this over with the regular dish. But listen to this. अब तमाम चीजों की इब्तिदा होनी थी और मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। हो सकता है अब इसे आप बिल्कुल अपनी पोशाक की जेब में समेट लें। आपको इसे हस्बे दस्तूर थाली में नहीं छोड़ना है, लेकिन इसे सुनना है। If you are an eternal creature, then you never had a beginning, or never can have an end. For eternal comes from the word which has no beginning or no end. अगर आप एक अब्दी मखलूक हैं, तो फिर आपकी कभी इब्तिदा ना हुई थी, ना ही कभी इख्तिताम हो सकता है, इसलिए कि अब्दियत कलाम से आती है, जिसका ना कोई शुरू और ना ही इख्तिताम है। Don't you remember? I said this morning that how that Melchizedek, when he met Abraham coming from the slaughter of the kings, and the Bible said in Hebrews 7 that Levi paid tithes to Melchizedek when he was in the loins of his father Abraham. क्या आपको ये याद नहीं है? इस सुबह मैंने कहा कि वो कैसे मलके सदक है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके आ रहा था तो खुदावंद उससे मिला, और बाइबल कहती है अब्रानियों 7 में कि लावी ने मलके सदक को देयकी दी जब वो अपने बाप इब्राहिम की सुलम में था। Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, Jacob begot Levi. That was father, grandfather, and great grandfather. इब्राहिम से इजहाक, इजहाक से यकूब, यकूब से लावी पैदा हुआ, जो कि एक बाप था। इजहाक दादा और इब्राहिम पर दादा था। And while Levi was in the loins of his great grandfather, the Bible gives him credit for paying tithes to Melchizedek. Talk about eternal. Amen. उस वक्त लावी अपने परदादा की सुलम में था, और बाइबल लावी को मलके सद्दक को देयकी देने को तस्लीम करती है और अब्दियत के बारे में बात करती है। मेरे खुदाया, हो मेरे खुदाया। He never said he done it the shadow, he potentially done it. The Bible said he paid tithes. Amen. उसने कभी नहीं कहा कि लावी ने उसे पोशीदगी में सरंजाम दिया, बल्कि उसने बातनी कुव्वत से सरंजाम दिया। बाइबल फरमाती है लावी ने देयकी अदा की। आमीन। Then if we come to the right seed, when Paul preached the gospel, I was there, and you were there. Amen. We're going to get into that just in a minute, come up to our ears. Hallelujah. Notice,
That's what the Scripture claims to us. In what way back? फिर अगर हम ठीक बीज के जरिए आते हैं तो जब पौलुस रसूल ने खुशखबरी सुनाई, मैं वहां था और आप भी वहां थे। हम इसे सिर्फ 1 मिनट में हासिल करने जा रहे हैं। कानों के साथ गौर से सुनिए, गौर करें कि कलाम मुकद्दस हमसे क्या दावा करता है, यहाँ तक के पीछे चलते हैं। Levi, then Jacob his father, then Isaac his father, then Abraham his father, his great-grandfather. When Levi was in the loins of his great-grandfather, he paid tithes to Melchizedek. सिर्फ सोचें, लावी, फिर याकूब, लावी का बाप, फिर इजहाक, याकूब का बाप, फिर इब्राहिम, इजहाक का बाप, जो लावी का परदादा था। जब लावी अपने परदादा की सुलभ में था, उसने मलके सिद्दक को देयकी दी। I want to ask you, who is this Job 27:8 when he said, "Where was you when I laid the foundations of the earth? When the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy?" मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन है? अय्यूब 27:38 में जब उसने कहा, तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते और खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे। Who were those sons of God that was shouting for joy? Jesus told them that I had joy with you before the foundation of the world. Amen. We're not creatures of time, we're creatures of eternity. कौन खुदा के बेटे थे जो खुशी से ललकारते थे? यीशु ने उन्हें बताया कि दुनिया के बनाए जाने से पेशतर मैं अपनी शादमानी तुम्हारे साथ रखता था। हम वक्त की मखलूक नहीं हैं, हम अब्दी मखलूक हैं। No man can come to me except my Father draws him. And all that comes to me, I'll give him eternal life and raise him up at the last days. No one can pluck him from the Father's hand to give him to me. How are you going to lose? कोई इंसान मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा बाप उसे खींच न लाए, और वो तमाम जो मेरे पास आते हैं मैं उनको अब्दी जिंदगी दूंगा और उन्हें आखिरी दिन फिर उठा खड़ा करूंगा। कोई उन्हें मेरे बाप के हाथ से नहीं छीन सकता जो उसने मुझे दिए हैं। अब आप कैसे नुकसान उठा सकते हैं? See, you're scared. You're afraid. You run around here. And that's one of the best evidences in the world you haven't been nowhere yet. That's right. समझे? आप डरे हुए हैं, आप खौफजदा हैं, आप इसके चौगिर्द दौड़ेंगे, और ये दुनिया के अंदर बेहतरीन सबूत में से एक है। आप अभी तक यहाँ नहीं गए हों, जो कि दुरुस्त है। How can God ever save you if He? How many in this church would raise your hands and believe that God's infinite? You know what the word infinite means? That's just perfect. खुदा कैसे आपको बचा सकता है? कितने इस कलीसिया में अपने हाथ उठाते हैं और ईमान रखते हैं कि खुदा लामहदूद है? आप जानते हैं लफ्ज लामहदूद का मतलब क्या है? ये सिर्फ कामल है। Infinite. You can't explain the word infinite. Did you ever take your camera and set on infinite? What this means from thereafter? All right, there's no way of focusing it anymore. Well, that's what God is. He's infinite. लामहदूद आप बयान नहीं कर सकते। आप लफ्ज लामहदूद को बयान नहीं कर सकते। क्या आपने कभी अपना कैमरा लिया, उसे लामहदूद पर जमाया? इसलिए इसके बाद सिर्फ उसे मद्देनजर रखना है। ठीक है, इसके बाद फोकस करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, वही खुदा है, वो लामहदूद है। And if He's infinite, there could not be a beetle, not a fly, not a flea, not a louse, not a chigger, or nothing that ever was on the earth or ever will be but what God noted before the world was ever formed. There's some conception of infinite. और अगर वो लामहदूद है तो इससे पहले कि ना एक बंवरा, ना एक मक्खी, ना एक पशु, ना एक जू, ना एक पतंगा, कुछ नहीं जो जमीन पर हो सकता था या कभी होगा, मगर खुदा दुनिया के बनाए जाने से पहले जानता था। कुछ तो लामहदूदियत का तस्वुर है। Well, then an infinite God who saves you here, knowing He's going to lose you next week or next month or next year, why He's defeating your very purpose. He can't lose you. ठीक है, फिर एक लामहदूद खुदा जिसने आपको यहाँ महफूज रखा है, ये जानते हुए कि वो अगले हफ्ते आपको खोने जा रहा है या अगले महीने या अगले साल, क्यों? तो क्या वो अपने मकसद को शिकस्त दे रहा है? वो आपको नहीं खो सकता। He that heareth my words and believeth on Him that sent me has everlasting life and shall never come into the judgment but is done passing death to life.
Can't do it. वो जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर ईमान रखता है, जिसने मुझे भेजा, उसमें हमेशा की जिंदगी है और उस पर कभी सजा ना होगी, क्योंकि ये मौत से निकलकर जिंदगी में आ चुका। वो ऐसा नहीं कर सकता। No more. He that's born of God does not commit sin. For the seed of God remains in him and he cannot sin. How can he sin when there's a sin offering for him? वो जो खुदा से पैदा हुआ गुनाह नहीं करता, क्योंकि खुदा का तुखम उसमें कायम रहता है और वो गुनाह नहीं कर सकता। कैसे वो गुनाह कर सकता है जबकि उसके लिए गुनाह की कुर्बानी है? How can I be sick when I'm in perfect health? How can I be blind when I can see? Oh my! मैं कैसे बीमार हो सकता हूँ जबकि मैं मुकम्मल सेहतयाब हूँ? मैं कैसे अंधा हो सकता हूँ जबकि मैं देख सकता हूँ? ओ माय! How can I be in the building and out of the building at the same time? How can I be drunk and sober at the same time? You can't do it! मैं कैसे एक ही वक्त में इमारत के अंदर भी हो सकता हूँ और बाहर भी? मैं कैसे एक ही वक्त में शराबी और संजीदा हो सकता हूँ? आप ऐसा नहीं कर सकते। And when you're saved, you're under the atonement. And your sins are not reckoned to you. Did not David say, blessed is the man who God will not reckon sin and impute sin to? जब आप कफारे के नीचे हैं तो आप महफूज हो चुके हैं और आपके गुनाह आपके हिसाब में नहीं होते। क्या दाऊद ने नहीं कहा, मुबारक है वो आदमी जिसके गुनाह को खुदा हिसाब में नहीं लाता और खता को मंसूब नहीं करता। God don't hold the sin against his creature. That's strong. That isn't skim milk, but that's the Bible. God will not reckon sin to the righteous. खुदा गुनाह को नहीं थामता जो उसकी मखलूक के खिलाफ है। वो ताकतवर है। ये दूध से भलाई उतारना नहीं है, लेकिन ये बाइबल है। खुदा रास्तबाज के गुनाह को हिसाब में नहीं लाएगा। God by his grace through predestination, not willing that any should perish, but all might come to repentance, but being infinite and know who would come and who would not come, he could predestinate everything to work to his will. खुदा पहले से मुकर्रर होने के जरिए अपने फजल से किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत आए। लेकिन लामहदूद होते हुए और जानते हुए कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, वो पहले से हर चीज को मुकर्रर कर सकता था कि उसकी मर्जी के मुताबिक काम करे। If he didn't do it, why did he permit sin in the first place? अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्यों उसने गुनाह को आने की इजाजत दी? When he was a savior, if there had never been a sinner, he would have never been a savior. The attribute what is in him could not be pulled out. जबकि वो एक निजात दहिंदा था, अगर वहाँ एक भी गुनाहगार ना होता तो वो कभी भी एक निजात दहिंदा ना होता। खसूसियात जो इसमें थी बाहर नहीं खींची जा सकती थी। How did he ever become a healer? How did he ever become a healer? Because he permitted sickness to come that he might show himself a healer. He was a healer. कैसे वो एक शाफी बना? कैसे वो एक शाफी बना? क्योंकि उसने बीमारी को आने की इजाजत दी ताकि अपने आप को एक शाफी जाहिर करे। वो एक शाफी था। How would he ever be known? How could his attribute ever work? How could he ever be a healer if there never been no sickness? He had to permit sickness. आप उसको कैसे जानोगे? कैसे उसकी खसूसियात को काम करते देखेंगे? वो कैसे एक शाफी हो सकता था अगर वहाँ कोई बीमार ही ना होता? उसने बीमारी को आने देना था। No wonder Paul said in Romans 8, foolish man, who can tell the potter what to do about it? Who, when the clay raised up, say, why make you me thus? हैरत नहीं, रोमियो 8 में पौलुस ने कहा, ऐ निकम्मे इंसान, कौन कम्हार को बता सकता है कि तूने इसके साथ क्या करना है? कौन तब मट्टी की बनी हुई चीज खड़ी होकर ये कहती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? Did not he raise Pharaoh up for the same purpose? That he might show his glory down in Egypt? क्या उसने फराउन को इस मकसद के लिए खड़ा नहीं किया था ताकि मिस्र में वो अपने जलाल को जाहिर करे? He hardens who he will and justify who he will. It's not him that willeth or him that runneth, but God that showeth mercy. बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है उसको सख्त करता है। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनस्सर है, ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। So you have nothing to do with it. You have one thing to do. If it's grace, if it's a free gift, there's not a thing you can do about it. God has given it to you. And that's the will of God. That's the thing that God has predestinated to you. इसी तरह आपको इसके साथ कुछ नहीं करना, आपको एक काम भी नहीं करना।
अगर ये फजल है, अगर ये एक मुफ्त बख्शिश है, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। खुदा ने ये आपको दे रखा है और यही खुदा की मर्जी है। यही चीज है जो खुदा ने आपके लिए पहले से मुकर्रर कर रखी थी। The Bible said that we were predestinated to the sons of adoption and the sons of God before the foundation of the world. बाइबल फरमाती है कि हम खुदा के पहले से मुकर्रर शुदा ले पालक बेटे थे। दुनिया के बनाए जाने से पेशतर हम खुदा के बेटे थे। Then when God slayed the lamb in his own thinking before the foundation of the world to prove out his attributes, what he was, when the lamb was slain, we were slain with it. तब जब खुदा ने बरा ज़बा किया था, उसने अपनी सोच में दुनिया के बनाए जाने से पेशतर ऐसा किया था ताकि अपनी खसूसियात को साबित करे कि वो क्या था। जब बरा ज़बा किया गया था, हम उसके साथ ज़बा हुए थे। When the blood of the lamb was caught in his own mind back there before the foundation of the world, mine and your names were written on the book down. All in his great thinking. जब बरे का खून उसने अपने जहन में रखा हुआ था, वहीं दुनिया के बनाए जाने से पेशतर मेरा और आपका नाम तब उस किताब में लिखा हुआ था। ये सब कुछ उसकी अजीम सोच में था। He's infinite. If he didn't, why did he permit it? Which is the strongest, I said, a savior or a sinner? Which has got the most strength? Then the stronger had to permit the lesser. And he only does it for his glory. वो लामहदूद है। अगर वो नहीं था तो क्यों उसने इसे इजाजत दी? कौन ताकतवर है? मैं कह चुका हूँ, एक निजात दहिंदा या गुनाहगार। किसने ज्यादा ताकत पाई? तब ताकतवर ने कमतर को इजाजत दी और इसने सिर्फ अपने जलाल के लिए किया। When he made Lucifer, he knew he'd be the devil. And he had to let it be there to show that he was the Savior, the Christ. He had to let it happen that way. जब उसने लूसीफर को बनाया, वो जानता था कि उसे एक शैतान होना था। उसने ऐसा होने दिया ताकि वो दिखा सके कि वो एक निजात दहिंदा मसीह है। उसने इसे इसी तरीके से होने दिया। Now don't the Bible say all things work together for good to them that love God? So what are you scared about? अब क्या बाइबल ने नहीं कहा कि सारी चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं? इसी तरह आप इसके बारे में क्यों खौफजदा हैं? Let us be up and doing with a heart for any strife. Be not like dumb driven cattle. Had to be begged and persuaded. Be a hero. I like that. Stand up. आइए किसी भी इख्तिलाफ के बगैर खड़े होते हैं और यकदिल होते हैं, गूंगे मवेशियों की तरह नहीं जो कि थके मांदों की तरह चलते और अपने आप को बहादुर समझते हैं। मैं इस नज़म को पसंद करता हूं जिसका उन्वान है खड़े हो जाओ। Poem that used to help me so much when I was a kid goes something like this. जिसे मैं जब मैं एक बच्चा था पढ़ा करता था, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हुई। कुछ इस तरह से कहती है। There was a noble Roman in the Roman's emperor days who heard a coward croaker before the castle say, "Oh, it's safe in such a fir tree, there's no one can shake it." "Oh no," said the hero, "I'll find a way or make it." There you are. That's right. रोमन हुक्मरानों के दिनों में एक रोमन शरीफजादा था। उसने एक डरपोक मेंढक की शक्ल वाले कीड़े को किले के सामने ये कहते हुए सुना, हो मैं इस देवदार के दरख्त में महफूज हूँ जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। हो नहीं, बहादुर कहता है, मैं एक रास्ता तलाश करूंगा या इसे बना लूंगा। यहाँ आप हैं, ये ठीक है। If this Bible teaches that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, it wasn't an easy thing when I stepped out of this tabernacle that day and everybody telling me this happened and that happened. अगर बाइबल ये सिखाती है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, तो ये कोई आसान बात नहीं थी जब मैंने उस टेबरनेकल से बाहर कदम उठाया और हर कोई कुछ ना कुछ बता रहा था, ये होगा और वो होगा। You be considered a fanatic, thrown into jail, and all the medical association get against you. आपको एक मुत्तसिब होते हुए जेल में डाल दिया जाएगा और तमाम तबाई खिदमत गुजार आपके खिलाफ हो जाएंगे। But God said, do it. The Bible said He was, and now a revival fire burns in every nation under the heaven. Stand up to it. लेकिन खुदा कहता है, ऐसा करो। बाइबल ने कहा वो था, और अब बेदारी की एक आग आसमान के तले हर कौम में भड़क उठी है। क्यों? इसके लिए खड़े हो जाओ। How do you tackle your work each day? Are you scared of the job that you find? Can you stand right up to the work ahead of you? Got a tired and empty mind. I hate that stuff. कैसे आपने अपने काम से निमटने को दूसरे दिन पर डाल दिया?
क्या आप इस काम से डरे हुए हैं जो आपने पाया? क्या आप ठीक काम के लिए आगे हो सकते हैं? क्या आपने एक थका और खाली दिमाग पाया? मैं ऐसी फजूल चीज से नफरत करता हूँ। Or do you stand right up to the work ahead, or is fear ever running through it? If so, tackle the next you find by thinking you're going to do it. आप काम को ठीक करने को आगे खड़े होते हैं या इसके करने में आप खौफजदा हैं? क्या इस तरह है तो अगले काम में लग जाइए, ये सोचते हुए कि आप इसे करने जा रहे हैं। Stay with it. Certainly, purpose in your heart like Daniel. Stay with God. यकीनी तौर पर इसके साथ खड़े रहें, दानियल की तरह अपने दिल में अज़म करें और खुदा के साथ खड़े रहें। Where did this all happen? How did it take place? What makes people dust? Why are we just about ready to be destroyed? Brother Branham, explain to me. ये सब कुछ कहाँ हुआ? कैसे इसने जगह ली? बस लोग क्या बताते हैं? क्यों हम सिर्फ हलाक हो जाने के लिए तैयार होते हैं? भाई ब्रैनम, मुझसे बयान करें। What makes you think that this whole thing's got to be wiped off? It was wiped off once before. Yeah, amen. Is that right? In the antediluvian destruction. आपने क्या सोचा है कि ये सारी चीजें जो पाई हैं इन्हें भी फना हो जाना है? ये एक मर्तबा पहले भी फना हुई हैं। क्या ये दुरुस्त है? तूफान नूह की तबाही में। Now here comes some deep things. We'll get ready to read. Now I want you to turn with me now over into the book of Genesis at the 3rd chapter. अब यहाँ कुछ गहरी बातें आती हैं और हम पढ़ने को तैयार हो जाएं। अब मैं चाहता हूँ आप पैदाइश की किताब 3 बाब में मेरे साथ चलें। If you want to know anything, I can show you in this book of Genesis where every cult and every ism and everything that we got right today began in Genesis. How many knows that Genesis means the beginning? Amen. Certainly. अगर आप किसी भी चीज को जानना चाहते हैं तो मैं आपको इस पैदाइश की किताब में दिखा सकता हूँ कहाँ सारे रस्म रवाज और इज़्म हैं, और हर एक चीज जो ठीक आज हमने हासिल की है इसका पैदाइश में आगाज हुआ। कितने जानते हैं कि पैदाइश का मतलब है इब्तदा होना? यकीनी तौर पर ऐसा ही है। We find the Catholic Church in the beginning. Babylon, Nimrod, the founder. We find it in the middle of the Bible. We find it at the last of the Bible. हम इब्तदा में बाबल कैथलिक कलीसिया को और इसके बानी नमरूद को पाते हैं। हम इसे बाइबल के दरमियान में पाते हैं। हम इसे बाइबल के इख्तिताम में पाते हैं। We find trying to bring in women preachers in the beginning of the Bible, but worshiping little statues made out of roots. हम पाते हैं कि इस बात की कोशिश करना कि मनाद खवातीन को इसमें लाएं। बाइबल के आगाज में इबादत के जरिए बुतों की बुनियाद को रखा। How many have read Hossus to Babylons in history? All right. कितनों ने हैसलूप की 2 बाइबल की तवारीख को पढ़ा है? ठीक है। Find out in these histories they had a woman, and then you remember even Jacob stole his father's gods, and his daughter hid him under her and took him out there in the wilderness, which defiled the camp later on. इन तवारीखों में कुछ अलहदा पाते हैं। उन्होंने एक औरत को रखा था और तब आपको याद है यहाँ तक कि जब यकूब के सुसर के बुतों को चुराया और उसकी बेटी ने उन्हें अपने नीचे छुपाया जब वो बियाबान में थे, जिसने बाद में पड़ाव को गंदा कर दिया।